Good morning all. Today I am going to discuss about S block elements. So first thing which we are going to see is members of the S block elements. So S block elements basically contain two groups. The first group elements are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. And second group contain beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. So group 1 elements are called alkali metals and second group are called alkaline earth metals. The next thing which are going to see in S block is the characteristic properties of the elements. And the first characteristic property is metallic character. Second is electronegativity. They have low electronegativity. Third, basic oxides and hydroxides. Next is ionic bond with fixed oxidation state. And the last is characteristic flame colors and then weak tendency to form complexes. So characteristic flame colors means every element gives a color when they are introduced to the flame, and weak tendency to form complex, they have a weak tendency to form complex compounds. So here we are going to discuss first property, that is metallic character. They have high tendency to lose electron to form positive ions. Therefore, metallic character increases down both the groups. The second property is electronegativity. Low nuclear attraction for outer electrons. They have a low attraction. So, due to this, they are highly electropositive, and overall, they are less electronegative. So the reason behind their low electronegativity is the low nuclear attraction in their outer electrons. The next is oxides, peroxides and superoxides. So here we can see that some of the elements forms peroxide, some superoxides and some simple oxides. So when there occurs reaction with water, then the elements form oxides, peroxides and superoxides. Lithium does not form peroxide or superoxide. It only forms oxides. Hydroxides. Group 1 hydroxides are given by lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. These all are soluble and base strength increases. In second group, hydroxide are formed by beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium. Their solubility increases from atmospheric to basic, and their base strength also increases. नेक्स्ट इज प्रीडोमिनेटली आयनिक विद फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका क्या मतलब है कि वो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ ही आयनिक बिहेव करते हैं. सो अगर ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करें तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिवली मेटल्स, उसमें ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है. और इसी के साथ दे हैव अ लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड एक्सट्रीमली हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. जो उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो तो कम होती है, बट जो उनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है. सो दे फॉर्म प्रीडोमिनेटली आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन and their fixed oxidation state is +1. Then if we discuss about group 2 elements, they are also electropositive element, and they also have weak low ionization energy, but here they have both first and second, both are weak ionization energy, but the third ionization energy is very high. So that is why beryllium and magnesium compounds possess some degree of covalent character. वो कोवेलेंट करेक्टर भी शो करते हैं, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी फिक्स होती है. तो इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2. द नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर्स. These elements when introduced to the flame, they gives colors, separate colors. Like if we introduce lithium to the flame, it will give deep red, sodium yellow, potassium lilac,
rubidium bluish red, cesium blue, calcium brick red, strontium blood red, and barium apple green. Weak tendency to form complex. So here we are going to discuss their property, that why they form weak complexes. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ कॉमन फीचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक कॉमन फीचर होता है. बट इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आयंस हैव नो लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग विद लोन पेयर्स of surrounding ligands. They rarely form complexes. So this is the reason that why they have a weak tendency to form complexes. The next is variation in properties of elements. इनकी किन किन एलिमेंट्स में वेरिएशन देखी जाती है, वो है एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पीज, हाइड्रेशन एंथैल्पीज, मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. एटॉमिक रेडियाई, अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो ये दोनों ग्रुप्स में ही इंक्रीज़ होती है, जैसे कि ग्राफ से भी देख सकते हैं. और इनकी जो अलग अलग एटॉमिक रेडियाई दी गई है नैनोमीटर में, वो भी देख सकते हैं. सो हियर वी कैन सी दैट एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. सेकेंड इज आयनाइजेशन एनर्जी. Ionization energy decreases in both. First ionization energy decreases, and the second ionization is much a little bit higher than the first ionization energy. मतलब first ionization energy जो होती है वो कम होती है in comparison to second ionization energy. और down the group, जैसे लिथियम से अगर सीजियम तक बात करें तो ionization energy decrease होती है. Same for the second group elements also. First ionization energy decreases down the group, second also decreases, third also decreases. But here we can say that first ionization energy and second ionization energy are very less than third ionization energy. So ionization energy decreases in the group. So here by plotting a graph, it is clearly we can see that ionization energy decreases down the group in both the groups, group 1 elements and group 2 elements. In group 1, they have generally low first ionization energy as it is well shielded from the nucleus by inner shield. Removal of second electron is much more difficult because it involves the removal of inner shell electron, and ionization energy decreases the group is descendant as atomic radius increases. The outer electron is further away from well shielded nucleus. So ये क्या बताया गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज़ होता है पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे वेल शील्ड होता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इनर शेल इलेक्ट्रॉन. सो इसी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज़ होती है. हाइड्रेशन एनर्जी का जो जनरल ट्रेंड रहता है दोनों ही ग्रुप्स में वो रहता है कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है एज द आयंस गेट लार्जर. जैसे कि आयन बड़े होते हैं, द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयंस डिक्रीजेज, जो उनकी चार्ज डेंसिटी है वो घटती है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स गेट स्मॉलर, और जो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है वो भी कम होता है. इसी वजह से जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है उनकी हाइड्रेशन एनर्जी घटती है. अगर बात करें ग्रुप 2 की तो उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज़्यादा होती है ग्रुप 1 से. क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 कैटायंस आर डबली चार्ज एंड हैव स्मॉलर साइज. सो ग्रुप 2 की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 1 से ज़्यादा होती है क्योंकि उनके कैटायंस डबली चार्ज होते हैं, उन पे +2 चार्ज होता है और इसी वजह उनका साइज़ भी स्मॉल होता है. तो इसी वजह से जो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी है ग्रुप 1 के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होती है. वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट की अब क्या रीज़न है
स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, मेटेलिक बॉन्ड जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आयनिक रेडियस पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड टू द इलेक्ट्रॉन सी पर एटम एंड क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। The exceptionally high melting point of calcium is due to contribution of d orbital participation of metallic bonding. So जो melting point होता है वो decrease होता है, but एक exception है किसके केस में, कैल्शियम के केस में, क्यों, उसकी जो bonding है उसकी वजह से। Reaction with oxygen. S block elements are strong reducing agents. Their reducing power increases down both groups. As the atomic size increases, it becomes easier to remove the outermost electron. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसी वजह से उनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है। दोनों ही ग्रुप्स में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और ये आसान हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्ट्स रेडिली विद ऑक्सीजन, इसी वजह से जो एलिमेंट्स एस ब्लॉक के वो ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट करते हैं, मतलब जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में, क्यों, दे हैव टू बी स्टोर्ड अंडर पैराफिन टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर। ये जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं अगर एटमॉस्फेयर में इन्हें कैप्ट करें, तो इसी वजह से इन्हें प्रिवेंट करने के, इनकी जो रिएक्शन है इसको प्रिवेंट करने के लिए इन्हें पैराफिन में स्टोर किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम रिएक्ट डायरेक्टली विद हाइड्रोजन। एक बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं। एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ओनली BeH2 एंड MgH2 आर कोवलेंट एंड अदर्स आर आयनिक। सिर्फ एक ये जो बेरिलियम के रिएक्शन कराते हैं जब हाइड्रोजन के साथ, और मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो जो उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं BeH2 एंड MgH2, सिर्फ ये ही दो कोवलेंट होते हैं। बाकी जो सारे बाकी एलिमेंट्स एस ब्लॉक के, उनकी रिएक्शन अगर कराएं हाइड्रोजन के साथ, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, इनकी रिएक्शन कराएं तो जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो आयनिक होते हैं। द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्लोरीन। All the S block metals react directly with chlorine to produce chloride. जितने भी S block के एलिमेंट्स हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाते हैं। जो ग्रुप 1 क्लोराइड्स हैं वो आयनिक होते हैं, लेकिन जो ग्रुप 2 है उसमें BeCl2 एसेंशियली कोवलेंट है विद कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। द लोअर मेंबर्स इन ग्रुप 2 फॉर्म एसेंशियली आयनिक क्लोराइड्स विद मैग्नीशियम हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? थर्मल नाम से ही पता चल रहा है, हीट। सो थर्मल स्टेबिलिटी रेफर्स टू द डीकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड ऑन हीटिंग। इंक्रीज थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स अ हायर टेम्परेचर इज नीडेड टू डीकम्पोज द कंपाउंड। सो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? कंपाउंड को डीकम्पोज करना हीट करके। अगर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, यानी हमें हीटिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है या टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपाउंड जो है उसे ज़्यादा हीटिंग बढ़ानी है, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा करना है। तो रीज़न क्या हो सकता है कि कंपाउंड को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए डिकम्पोज होने के लिए, इसी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ानी पड़ती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है वो होता है चार्ज ऑफ द आयंस, साइज ऑफ द आयंस। कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल इफ द चार्ज इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज। कब कंपाउंड स्टेबल होते हैं? जब चार्ज तो इंक्रीज हो और साइज डिक्रीज हो। एंड द नेक्स्ट इज फॉर कंपाउंड्स विद लार्जर पोलराइजेबल anions, thermal stability is affected by the polarizing power of the cation. Polarizing power क्या होती है? कैटायन की पावर एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट करने की। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जिसकी पोलराइजेबल जो एनायन अगर लार्ज पोलराइजेबल है तो थर्मल स्टेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है। कैसे?
पोलराइजेबल जो पावर है केटायन की उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर मीन्स इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर घट रही है वैसे वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। रिएक्टिव सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दिखाई गई है मोल पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में, और सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और ये बताया गया कि हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो ग्रुप में नीचे जाते जाते इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स, अगर ग्रुप 2 सल्फेट्स की बात करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी ग्रुप में ऊपर जाते हैं तब इंक्रीज होती है, मतलब अगर नीचे जाए तो डिक्रीज होती है, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स इंक्रीजेस अपसाइड द ग्रुप। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड्स। जो एस ब्लॉक एलिमेंट से कंपाउंड्स बनते हैं उनके क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं। अगर फर्स्ट बात करें हम सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जा सकता है ग्लास मैन्युफैक्चर्स में, जैसे टेस्ट ट्यूब्स, बॉइलिंग ट्यूब्स। अगर लेबोरेटरी की बात करें तो इन सब ग्लासवेयर्स को सोडियम कार्बोनेट से बनाया जा सकता है, पर हालांकि ये इस मटेरियल की नहीं बनी होती, बाकी कुछ एक ग्लासवेयर्स होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जा सकता है। वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ किया जा सकता है। पेपर इंडस्ट्री में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ देखा जा सकता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के जो मेन यूजेस होते हैं बेकिंग पाउडर और सॉफ्ट ड्रिंक में होते हैं। ये जो एक क्या कहते हैं उसे, बेकिंग पाउडर है, जैसे वो चीज़ों को जल्दी से सॉफ्टनिंग में हेल्प करता है। जैसे डो में बहुत यूज़ होता है बेकिंग पाउडर का, और जो सॉफ्ट ड्रिंक में जो सिजलिंग साउंड्स वगैरह होती है, इन सब के पीछे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं उनको कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अगर बाकी भी हम बात करें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जा सकता है, कई प्रकार के सॉप्स बनाए जा सकते हैं। अब हाँ, बाद में उनमें स्मेलिंग वगैरह आ जाती है, ये सब उनमें बाकी और भी चीज़ें ऐड की जा सकती है, बट इनिशियली सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ किया जाता है। डाइज में यूज़ किया जा सकता है, पेपर एंड ड्रग्स में भी इसका यूज़ होता है। टू मेक रेयोन एंड इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, रेयोन एक मटेरियल टाइप होता है जैसे क्लोथिंग वगैरह में, उसमें भी इसका यूज़ देखा जा सकता है। और इम्पोर्टेंट केमिकल्स में तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये तो हम सबको पता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज़ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और एंटासिड है, ये एक मतलब एसिडिटी को भी दूर करने में इसका यूज़ हो सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ही और एक एंटासिड की तरह भी ये काम करता है। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का कोई भी प्लांट बनाते हैं, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब ऐड करते हैं, ताकि कोई मान लो एसिड्स है उस पानी में मिला, जैसे इंडस्ट्री से पानी आता है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, तो उस वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट में हमें क्या ऐड करना पड़ता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उस वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है। इंडस्ट्रीज़ हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई, चिमनीज़ वगैरह, किचन के भी कई सारे वेस्ट है जिनमें इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्ट्रोंशियम कंपाउंड। जो स्ट्रोंशियम के कंपाउंड होते हैं उनका फायरवर्क्स में यूज़ होता है। और परसिस्टेंट इंटेंस रेड फ्लेम, और रेड फ्लेम दिखाता है ये, मतलब फायरवर्क्स में जनरली इसका यूज़ होता है। जैसे अगर हम फेक फायर बना रहे हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और रेड फ्लेम देता है, इसी वजह से हाईली फ्लेमेबल भी कह सकते हैं। बाकी जैसे सर्दियों में अंगीठी वगैरह में, इन सब में मतलब इनके कंपाउंड्स का फायरवर्क्स में बेसिकली यूज़ होता है। तो ये थे एस ब्लॉक के कुछ यूजेस। सो इसमें हमने डिस्कस किया है एस ब्लॉक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे ग्रुप में वेरी करते हैं, इंक्रीज़ होती है, कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होती है। देन वी हैव डिस्कस्ड रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, सल्फेट्स, हाइड्रोजन, क्लोरीन,
उनके रिएक्शंस को हमने जो है इसमें डिस्कस किया है और उसके बाद हमने यूजेस को भी डिस्कस किया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स. थैंक यू.